Welcome to this session, the second session uh, of Atal FDP. And this is the yoga session. And I would like to introduce our yoga trainer for today's session. I take this opportunity to introduce the Yoga Sparsh Center through which this yoga session is being conducted. Yoga Sparsh is a yoga training and meditation center which is situated in central Patna. And this Yoga Sparsh Center provides very high quality training in yoga and meditation practices. The center creates the perfect environment to explore inner potentials. The Yoga Sparsh Center offers a variety of training options in Hatha Yoga, Power Yoga, Jalaneti, Vaman Dhauti, and more with flexible days and timing options for all the people who are interested to go for such practices. Now I'd like to introduce our yoga trainer, Sri Udit Kumar, who we can see on the screen today. And happiness and being at peace is the true nature of all human beings. All of us agree with it. Everyone searches for peace, and in that search, Sri Udit Kumar, our yoga trainer for today's session, found his path as service to mankind is service to God. He took inspiration from Satyanand Yoga tradition, Munger and Rikya Peeth Ashram Devghar. He started his private practice in 2015 as a yoga trainer, giving out and providing personal one-to-one yoga session and group sessions too. He has worked with many institutions, colleges, and NGOs such as Satyanand Yoga Kendra, Patna, Arvind Mahila College, Patna University, Patna, Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, Doordarshan Kendra, Patna, Kahani Ghar, and many more. So all of us know that this session is going to be quite different from what we were having, and this is for all of us to look into and search towards the holistic side and holistic approach and the spiritual approach towards a better life and a fulfilled human life. So welcome to all of you. Welcome. I welcome our yoga trainer, Sri Udit Kumar ji. Welcome to you. And I would like that I'm now giving this invite to Sri Udit Kumar to start this session. Thank you. Dhanyavad. हरिओम। हृदय से सभी को नमन और हरिओम। सिर्फ एक बार कंफर्म हो जाए, मेरी आवाज ऑडिबल है सभी को? जी हाँ। ओके, सो हरिओम सभी को। तो आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि यौगिक प्रैक्टिसेस के ऊपर है। सबसे पहले हम सभी लोग एक छोटे से शांति पाठ से शुरू करेंगे। उसके लिए ध्यान के किसी भी अवस्था में बैठ जाइए, या आप अगर चेयर पे हैं तो वहीं पर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए। दोनों हाथों को, कलाइयों को घुटने के ऊपर रखिए, ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में। आंखों को सहजता पूर्वक बंद आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। कहीं भी कोई जकड़न व्याकरण हो उसे दूर कीजिए। शरीर को शिथिल एवं शांत होने दीजिए। अब अपने ध्यान को श्वासों पर लाइए। हर एक श्वास को महसूस कीजिए, उसके स्पर्श तापमान को। श्वास लेते वक्त नासिका छिद्रों में ठंडक और छोड़ते वक्त गर्माहट का एहसास।
अपने ध्यान को श्वासों से हटाकर अपने भ्रू मध्य पे लाइए। वहां एक चमकती दिव्य ज्योति का मानस दर्शन कीजिए। ध्यान को ज्योति पर टिका कर रखिए। हम लोग 3 बार ओमकार तत्पश्चात ओम शांति का अभ्यास करेंगे। एक साथ ओमकार हेतु गहरी एवं लंबी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मैं उदित कुमार, योगा स्पर्श की तरफ से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो आज हमारा मुख्य लक्ष्य है योगा प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो पहले इसके ऊपर कुछ चर्चा हो जाए और फिर आगे प्रैक्टिकल सेशंस के ऊपर हम ध्यान देंगे। इसमें हम जानेंगे कि योग को किस तरीके से अपने जीवन में लाया जाए, योग की विशेषताओं के बारे में और योग क्यों आवश्यक है और अभी के कॉन्टेक्स्ट में योग का कितना महत्व है, खासकर पैंडेमिक के समय में। तो जैसा आप सभी जानते हैं, योग का शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता है, जोड़ होता है, जो कि संस्कृत के युज धातु से बना है। अक्सर हम प्रायः देखते हैं कि लोग योग के सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो सबसे आवश्यक पक्ष है वो उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष है। क्योंकि जब तक हम अपने योग को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में नहीं लाते हैं, तब तक उसका जो हमारे जीवन पे सकारात्मक असर है वो नहीं दिख पाता। जहाँ तक हम जानते हैं और समझते हैं, जो योगाभ्यास, योगा आसन हम लोग किसी एक जगह पर, किसी योगा स्टूडियो में या किसी भी स्थल पर करते हैं, वो संपूर्ण योग का एक मात्र अंश है। योग को केवल आप किसी एक कक्षा या किसी क्लासरूम में सीमित नहीं कर सकते, उसे आपको अपने जीवन में उतारना होगा। हम कई तरह के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा, बंध आदि बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं। एक आम इंसान को अपने जीवन में योग कई कारणों से करना चाहिए। हम जैसा प्रायः मानते हैं, हम जितने भी चीज़ों को करते हैं उसका माध्यम हमारा शरीर और मन होता है, और योग हमारे शरीर, हमारे मन और भी हमारे पर्सनालिटी के अलग-अलग एस्पेक्ट पे काम करती है। आम धारणा केवल फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर को लेकर है, पर योग का मानना है, और अब साइंस भी इसको मानती है, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो केवल शरीर भर नहीं है। हम अलग-अलग, हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। हमारा जो शरीर है, जो अन्न से बना है, वो अन्नमय कोश। हमारी जो मन है, वो मन से, उसको मनोमय कोश बोलते हैं। और जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, प्राण है, जो वाइटल फोर्सेस हैं, वो प्राणमय कोश। उसी तरीके से विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। योग का जो प्रभाव है वो होलिस्टिक है, और हमें योग में एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना चाहिए। योग केवल किसी आसन से
केवल एक या दो या कुछ आसनों के समूह को नहीं कहते हैं। तो योग को एक जीवन शैली में अपनाना एक अनिवार्य तत्व हो चुका है और खासकर अभी के समय में योग को तो बिल्कुल अपनाना ही चाहिए। योग आपके केवल शरीर नहीं, आपके मन, आपके आत्मा और आपके पूरे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है। अगर हम योग विद्या की बात करें तो उसमें आप अपने जीवन को कैसे योगमय बनाएं, उसके लिए आप काफ़ी प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने योगा स्टूडियो या कहीं जाकर ही आप योग करें, कहीं भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। इवन आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ भी आप हो, वहाँ पे आप योगाभ्यास कर सकते हैं। योग केवल शारीरिक तो है नहीं, इसीलिए जैसे धारणा की क्रियाएँ हैं जिसमें अजपा जप है या प्रत्याहार की क्रियाएँ हैं या प्राणायाम है, बहुत से ऐसी विधि है जो आप आराम से सहजतापूर्वक किसी भी आसन में किसी भी तरीके से बैठकर या आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। अगर हम एक आम इंसान के जीवन की बात करें, तो उसे जो कुछ मुख्य योगाभ्यास करने चाहिए, उनमें उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे आम शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो हो सकते हैं आपके मेरुदंड को अगर आप देखें, स्पाइन को देखें, तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और टोटल हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, इन्वर्जन या फुल इन्वर्जन या सेमी इन्वर्जन, उसके साथ-साथ आपके कुछ प्राणायाम जिसमें कि मुख्य नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग और साथ में भ्रामरी और कुछ धारणा और ध्यान के अभ्यास, इतने एक आम जीवन में काफ़ी हो जाते हैं आपके टोटल हेल्थ के लिए। अक्सर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो इस पे एक मुझे वाक़या याद आ रहा है। हेल्थ जब हम बोलते हैं तो वो शब्द बना है हील से और हील का मतलब होता है ठीक होना। तो बिल्कुल इससे समझ में आता है कि जब आप कोई चीज़ खराब होगी, तभी वो ठीक होगी। यानी जो हेल्थ है, वो हील शब्द से बना है, यानी आपकी तबीयत शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या किसी भी तल पर एक बार बिगड़ जाए, तब उसे ठीक करने को कहते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी के शब्द स्वास्थ्य पे आएँ, तो उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग होता है स्व में स्थित होना। कहने का मतलब जैसे आप हैं, वैसे ही हो जाना। जैसे आपका स्वभाव है, जैसी आपकी प्रकृति है, वैसे हो जाना। तो यही डिफ़रेंस है। योग केवल क्यूरेटिव नहीं है, ये प्रोमोटिव है, प्रिवेंटिव है। तो हमें इसके प्रोमोटिव नेचर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको अपने लाइफ़ में पहले से ही योग को शामिल करना चाहिए, उसे जगह देनी चाहिए, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें, किसी भी विपदा से, किसी भी सिचुएशन से टैकल करने के लिए। आपकी समस्याएँ कम होंगी या नहीं होंगी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे आप टैकल कर सकते हैं। आपकी डिसीज़न मेकिंग, आपका उसके प्रति जो नज़रिया है, जो अप्रोच है, वो बदल जाएगा। तो हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी के लिए योग को अपनी जीवन शैली में ज़रूर अपनाएँ। इसका आपके पूरे जीवन में इसका असर होगा। हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे आप हमेशा स्माइल करके, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके उसको व्यक्त करें, ताकि आप हमेशा खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें और हार्मनी में रह सकें, स्वयं के साथ भी और अपने आस-पास के वातावरण के साथ भी। योग आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है और योग में जैसे मैं बता रहा था, इन्वर्जन भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो इसको आप दिन भर में कैसे कर सकते हैं, इसका एक छोटा-सा अगर आप एक दिनचर्या बनाएँ, तो जब आप मॉर्निंग उठते हैं, तो आप मंत्र साधना कर सकते हैं, जो कि हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा की ट्रेडिशन है, जिनको जो हमारा बेस है, आप उसको देखें, तो आप 3 मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं संकल्प के साथ।
आप उस संकल्प को अपने जीवन में डाल सकते हैं, जैसे अपने टोटल हेल्थ, अपने स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास हेतु और लंबी आयु हेतु संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 बार सुबह उठने के बाद बिना स्नान ध्यान किए कर सकते हैं। उसके बाद एक और संकल्प लेंगे, गायत्री मंत्र हेतु अपनी बुद्धि, विद्या, विवेक और अंतर प्रज्ञा के समृद्धि और विकास हेतु संकल्प लेकर 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ जप कर सकते हैं। उसके अलावा अपने जीवन से दुख, दुर्गति को दूर करने हेतु, सामंजस्यता की स्थापना हेतु, हार्मनी हेतु आप दुर्गा माँ के 32 नाम को 3 बार जप कर सकते हैं। ऐसा दिन में उठने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले कर सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जीवन, दैनिक कार्य को शुरू करने के पहले TTK यानी ताड़ासन, तीरक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप स्नान के बाद इसे अभ्यास करें तब ताकि लाभ ज़्यादा होगा, और नाश्ते के पहले आप इसको इन तीनों का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ प्राणायाम, जैसे मैंने बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम अभी कोविड टाइम्स में भी काफ़ी साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनती है उसकी मात्रा 15 गुना बढ़ जाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको आप अभ्यास करें। फिर आप अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में कुशलता लाएं। जहाँ भी आप रहें वहाँ पे लोगों के साथ सामंजस्यता रखें, सभी के साथ स्माइल के साथ बात करें। अपने वर्क प्लेस पे बीच बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म अभ्यास अपने वर्किंग प्लेस पे भी कर सकते हैं। आप अपने चेयर पॉस्चर, अपने स्पाइन पॉस्चर का स्पेशल ध्यान रखिए, अपने डाइट का सही ध्यान रखिए। शाम में ऑफिस के बाद आप बहुत सारे रिलैक्सेशन पोजेज हैं, जैसे मकर आसन, जैसे आप योग निद्रा, योग नैप ले सकते हैं। और उसके बाद रात में सोने के पहले मंत्रोच्चारण और रिव्यू ऑफ द डे कर सकते हैं। सोने के पहले दिन में आपने जो भी चीज़ किया है उसका एक रिव्यू करेंगे, और साथ ही साथ एक स्वान टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम्बिशन और नीड्स, इन चारों का पेपर वर्क करके हफ्ते और महीने तक आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके साथ कोप अप करेंगे, ताकि आप स्वयं को जान सकें, अपने समय का सदुपयोग कर सकें, लक्ष्य तय कर सकें, और योग उसमें आपकी मदद करे। तो योग के इन आयामों को अपने जीवन में डालना बहुत ही आवश्यक है। योग एक जीवन शैली की तरह अपनाने की ज़रूरत है लोगों को, ना कि केवल 1 घंटे या कुछ एक योगा सेशन में, केवल फिज़िकल फॉर्म में नहीं। फिज़िकल फॉर्म, आसन एक उसका एक हिस्सा है, ना कि संपूर्ण योग, संपूर्ण योग विद्या। जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना हो सकारात्मक, तब तक योग का असर नहीं माना जाएगा। तो इन बातों के साथ मैं अपने प्रैक्टिकल पक्ष को शुरू करता हूँ। आगे आने वाले 40 मिनट्स में हम योगाभ्यास करेंगे, उसमें आसन भी होंगे, प्राणायाम होंगे, कुछ ध्यान होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। तो होपफुली आपने 2 से 3 घंटे पहले नाश्ता किया हो, ताकि एम्प्टी स्टमक आप हो, आपके कपड़े ढीले-ढाले हों, आस-पास वेंटिलेशन अच्छी हो और साफ-सुथरा माहौल हो, ताकि योगा के एक्सपीरियंस को आप आगे और भी अच्छा कर सकें। तो जहाँ भी आप हो, अगर आप चेयर पे भी हों, तो आप चेयर पे भी चीज़ों को कर सकते हैं। आप थोड़ा मॉड्यूलेट कर लें, मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनें और अपने सुविधाजनक तरीके से ही करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से, नहीं देंगे। एक्सपीरियंसेस के प्रति सजग रहेंगे। 3 स का इस्तेमाल करेंगे, आपका शरीर, श्वास और सजगता। इन तीनों को हमेशा साथ में लेकर चलना है। अभी के अभ्यास में जो भी अनुभव प्राप्त करेंगे, उनके प्रति सजग रहेंगे। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। पैरों को, जो बैठे हैं वो पैरों को अनफोल्ड कर लीजिए।
अपनी जगह या जो चेयर पे भी बैठे हैं वो अपने पैरों को खोल लीजिए रिलैक्स तरीके से। ध्यान को पैरों में लाइए, पूरे थाइज, नी, फीट में लाइए। नाउ शेक कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है उसके प्रति सजगता रहनी चाहिए, चाहे वो मांसपेशियों में खिंचाव हो, जोड़ों में फ्रिक्शन हो, सनसनाहट हो, झंझनाहट हो आदि। दोनों पैरों को शेक कीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान मानसिक रूप से सजग और शिथिल रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। दोनों पैरों को नजदीक ले आइए, नीज को थोड़ा बाउंस कीजिए अप डाउन। पूरे शरीर में होने वाले और खासकर आपके घुटने में होने वाले स्पंदन, फ्रिक्शन को महसूस करेंगे, कंफर्टेबल होंगे। ऑल्टरनेट बाउंस कर लीजिए। आंतरिक रूप से तनाव नहीं रखेंगे। थोड़ा फास्टर। स्पाइन सीधी है ऑलमोस्ट। अपने ब्रेन के दोनों हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। फास्टर एंड नाउ धीरे से रिलैक्स। पंजे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कुछ क्षणों के लिए। पूरे शरीर में जो भी अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं, सनसनाहट, झंझनाहट आदि के रूप में, उनके प्रति सजग रहिए। ध्यान पूर्वक अपनी जगह खड़े हो जाइए। जो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे वो चेयर पे बैठकर ही जितना हो सके अभ्यास करेंगे। अत्यधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दोनों पैरों को सामान्य रूप से नजदीक ले आइए। दोनों घुटने को सटा लीजिए, अंगूठे को सटा लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर। इस वक्त आपका शरीर दाएं या बाएं डोल रहा है। शरीर के भार को दोनों पैरों पर बराबर तरीके से लाने का प्रयास कीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए, सामने किसी बिंदु पर टिकाइए। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रखिए। लगातार बिंदु पर देखेंगे अभ्यास के दौरान। उंगलियों को आपस में फंसाइए। श्वास लेते हुए सर के ऊपर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। लगातार बिंदु पर देखिए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और अपनी एड़ी को ऊपर लाएंगे, यानी अपने पंजे पे आइए। दोनों हाथ को कान से सटाइए। शरीर को जितना हो सके तानिए। श्वास छोड़िए पुनः नीचे, हथेलियां आकाश की तरफ है। अगेन श्वास लीजिए ऊपर। पूरे मेरुदंड में शरीर में खिंचाव होने दीजिए। पैर के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगलियों तक खिंचाव को होने दीजिए। एंड एक्सहेल, श्वास छोड़िए डाउन। 5 चक्र इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लीजिए ऊपर। अपने एक्सपीरियंसेस के प्रति सजग रहिए। लगातार बिंदु पर देखिए। बिंदु ना हो तो इमेजिन कर लीजिए। एंड एक्सहेल डाउन। आपकी श्वास, शारीरिक विधि और सजगता। अगेन श्वास लीजिए। आपका श्वास आपका परम मित्र है। श्वास छोड़िए डाउन। श्वास कभी भी रोकना नहीं है जब तक इंस्ट्रक्शंस ना मिले। इनहेल अगेन, श्वास लीजिए ऊपर। पूरे शरीर को तानिए और टोज पे आइए। मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ योर टोज टचिंग द ग्राउंड। एंड एक्सहेल डाउन। वन मोर राउंड। इनहेल आप। जो चेयर पे बैठे हैं केवल हाथों को स्ट्रेच करके। एंड एक्सहेल डाउन। नाउ रिलैक्स। हाथों को नीचे, पैरों में थोड़ी सी दूरी 1 से 1.5 फीट की। स्टैंडिंग शवासन। आंखों को बंद, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
बंद आंखों से महसूस कीजिए किसी भी तरीके के परिवर्तन को, आपकी धड़कन की गति, श्वास की गति, मन मस्तिष्क पे असर, आंतरिक अंगों में स्पंदन या अन्य किसी भी तरह की संवेदनाओं के प्रति सजगता रखिए। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी कीजिए। दोनों पंजे एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल। उंगलियों को आपस में फंसाइए, इंटरलेस। श्वास लीजिए ऊपर। जिनको सीवियर बैक पेन है वो ध्यान देंगे किसी भी बेंडिंग में, फॉरवर्ड बेंडिंग में तो ज्यादा ध्यान, ये साइड बेंडिंग है इसका ध्यान रखिए। श्वास और ये दाईं तरफ, अपनी दाईं तरफ जितना हो सके जाइए। दोनों हाथों को कान से सटाकर आपकी जितनी क्षमता है उतना चाहिए। 5, स्टे देयर, कीप ब्रीदिंग। 4, 3, 2 एंड इनहेल अप। एक्सहेल, श्वास छोड़ते बाईं ओर। अपने मेरुदंड बगल का अनुभव कीजिए, इस आंतरिक अंगों में क्या दबाव पड़ रहा है, प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को। 2, 1, inhale up. This is one round. We will do total 5. Exhale 5, 4, 3, 2, inhale up and exhale. आपकी क्षमता अनुसार जितनी आपकी क्षमता है उतना बेंड कीजिए। ये साइड बेंडिंग है, ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। 3, 2 and inhale up. किसी को रिलैक्सेशन चाहिए तो वो हाथों को नीचे लाकर पैरों में दूरी कम कर सकते हैं और पुनः शुरू कर सकते हैं। कंटिन्यू टोटल 5। इनहेल एंड एक्सहेल। आपके बगल में मांसपेशियों में खिंचाव, आपकी रीढ़ की हड्डी में, उसमें जो गैप्स हैं, उसमें जो भी असर हो रहा है उनके प्रति सजगता। 2 and 1। एक्सहेल ऑपोजिट। अपने फीट के प्लेसमेंट का भी ध्यान रखेंगे, आपके हिप जॉइंट या नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए। 3, 2, inhale up. Again, continue, exhale. Feel spinal cord, internal organs, rib cage, whole arms. 2 and inhale up. Exhale. Observe. 3, 2, inhale up and relax. हाथों को बगल में ले आइए, पैरों में दूरी कम कर लीजिए। स्टैंडिंग शवासन। पैरों में दूरी, पंजे बाहर की ओर एंड रिलैक्स, आंखें बंद। इस वक्त आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी धड़कन में, आपकी श्वासों की गति में कुछ परिवर्तन है। आपके शरीर में सनसनाहट, झंझनाहट, रक्त संचार या किसी भी प्रकार की संवेदनाओं के प्रति सजग रहिए, एक दृष्टा की तरह। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार। कटी चक्रासन। पैरों के बीच में दूरी 2.5 से 3 फीट की वापस कंफर्टेबल रहना है। लोअर बॉडी पार्ट को यानी कि हिप एरिया को, योर वेस्ट एरिया, योर थाई और नी को लॉक रखना है। श्वास लीजिए, हाथों को शोल्डर के लेवल पे उठाइए। नाउ राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। दायां हाथ कमर पे और बायां हाथ शोल्डर पे और पीछे देखेंगे, बाकी वेस्ट लॉक होगा। वापस इनहेल सेंटर, हाथों को अच्छे से फैलाएंगे और एक्सहेल ऑपोजिट। इसी को रैपिड में करेंगे। हाथों को फ्री छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सहेल ऑपोजिट। श्वास लीजिए सामने, श्वास छोड़िए। अभ्यास के प्रति सजग रहिए। इनहेल, एक्सहेल, हाथों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए।
अभ्यास तीसरा कुछ अभ्यास होने के बाद 10 से 20 राउंड्स रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अभ्यास के प्रति सजग रहिए। जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रति सजगता रखिए। अभ्यास के प्रति सजग रहिए। जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं बहुत अच्छे। अब हम लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ये हमने अभ्यास किया TPA का। इसके बाद हम लोग कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद कुछ और भी आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आराम से किसी भी अवस्था में सुविधा किसी अवस्था में बैठ जाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें अपने दाएं हाथ से नासापुरा लगा उदित जी, हेलो। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट को छोड़िए। ये वही ऐसा नॉट एट ऑल करेंगे। अब अपने ध्यान को आइडियल सेंटर नेक्स्ट में रख सकते हैं। Equals to time of exhalation. जब आप काउंटिंग टाइम करेंगे तो मन जैसे सांस लेंगे ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 सांस छोड़ेंगे ओम 5 ओम 4 ओम 3 ओम 2 ओम 1। इस तरीके से अभ्यास चालू रखिए। हर बार श्वास बाहर छोड़ने पर आप एक अलग शांति की अनुभूति करें। सांसों में सूक्ष्म प्राणी ऊर्जा को महसूस कीजिए। जिनको राइट हैंड में सपोर्ट की जरूरत पड़े वो लेफ्ट हैंड से सपोर्ट कर सकते हैं, या आप अभ्यास को रोक सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए कुछ सेकंड्स का गैप ले सकते हैं, 30 सेकंड्स मान लें, और जब आप ठीक महसूस करें तो तुरंत शुरू करें। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जिनका अभ्यास हो जाए वो हर टेबल को वापस मुद्रा में आंखों को बंद रखिए। बंद आंखों से आपको 1 मिनट उदित जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हरिओम। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, अचानक सुनाई नहीं दे रहा है हम लोग को इधर। यू आर नॉट ऑडिबल टू अस।
अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, बीच में शुरू में तो बिल्कुल ठीक आ रही थी, अभी 2-3 मिनट से बहुत धीमी आने लगी। हाँ वो अपने ये जो मेरा लूप सेट है 2-3 बार डिस्कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट हुआ है। सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया बीच में ही। नहीं सही हो गया। ओके अभी ठीक थैंक है? यू। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक। ओके प्लीज कंटिन्यू। तो जिन्होंने 10 राउंड्स कर लिया है नाड़ी शोधन का अभ्यास, वो आराम से बैठेंगे और जो भी अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं, विश्रांति प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके प्रति संजय रहते एक दृष्टा की तरह। जिनका अभ्यास पूरा नहीं हुआ हो वो अभ्यास को पूर्ण कर ले। इस बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए सभी लोग अभ्यास का त्याग करें। अब पैरों में जो भी जगह नटन हुई उसको दूर करने हेतु पद्म कोणासन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को नजदीक ले आइए, दोनों तलवे को आपस में सटा दीजिए। अपनी बॉडी में जितना क्लोज रख सकते हैं क्लोज रखिए। दोनों हाथों से टोज को होल्ड कीजिए। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधी कीजिए। अपने लोअर बैक को आगे पुश कीजिए आरामदायक तरीके से। अपने ध्यान को हिप जॉइंट, थाइज, लोअर बैक पे रखिए। नाउ स्टार्ट बाउंसिंग योर नीज। हिप जॉइंट, अपने नीज को बाउंस करते रहिए। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आवाज तो आ रही है उदित जी, लेकिन बहुत लग रहा है दूर से आवाज आ रही है, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो ठीक है। प्लीज कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। आई मस्ट सी वन। I request all the participants to just bear with us for a couple of moments because the audio was quite low. So please bear with us and wait for a couple of minutes. We will resume the yoga session soon. Is my voice clear right now? Yeah, completely. एकदम सही है, बिल्कुल ठीक। Thank you, धन्यवाद। सभी को सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, आफ्टर नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने पैरों के रिलैक्सेशन के लिए बद्ध कोण आसन करेंगे। दोनों पैरों को तलवे को आपस में सटा लीजिए। अपनी हील्स को बॉडी के क्लोज ले आइए। अपने टोज को होल्ड कीजिए। नाउ इनहेल, स्पाइन को सीधी कीजिए, शोल्डर रोल्ड बैक, चेस्ट स्लाइटली आउट, चिन स्लाइटली अप, आईज क्लोज्ड। अपने ध्यान को हिप जॉइंट पे, थाइज मसल्स और लोअर बैक मसल्स पर रखिए। नाउ स्टार्ट बाउंसिंग योर नीज। डू द मोशन इन योर रेंज एंड इन योर कंफर्ट जोन। मेक श्योर कि आपने अपने लोअर बैक को आगे की तरफ पुश रखा है। देयर इज अ कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर। विथ क्लोज्ड आईज you can feel the sensations, the stretchings more. If you wish, you can open your eyes also. Now slightly increase the range of motion and a bit of pace. महसूस कीजिए। Just observe. Unless if you have severe back issue, you can do it. Now relax softly. Now again sit comfortably. Comfortable तरीके से बैठ जाइए, आपको जैसे भी comfort लगता हो। Suppose you are having trouble in sitting any of the asanas, आप एक पैर को आगे की तरफ रख सकते हैं और comfortable हो जाइए। Now
we'll move to the next pranayama, that is Bhramari pranayama. It is very simple. इसमें आपको भवरे की तरह गुंजन करना है, जो कि बहुत ही मधुर ध्वनि होगी. ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है. अपने एक्सटर्नल छोटे से ईयर को अंदर की तरफ प्लग इन करना है और भ्रामरी उद्गीत करनी है, जैसे भवरा गुंजन करता है वैसे. 5 राउंड्स करेंगे. श्वास लीजिए, आंखें बंद. आफ्टर 5 राउंड्स रिलैक्स. आंखों को बंद ही रखिए. स्पंदन के सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने गले, मस्तिष्क और पूरे शरीर में. संपूर्ण विश्रांति. मसाजिंग ऑफ योर ब्रेन सेल्स, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट waves of your brain, creating harmony. वेरी नाइस. नाउ आराम से वापस बैठ जाइए. अगला अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें इन्वर्जन आएगा. सेमी इन्वर्जन भी कर सकते हैं और फुल इन्वर्जन भी. इनिशियल फेज में फुल इन्वर्जन नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे सेमी इन्वर्जन और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो हम लोग एक सेमी इन्वर्जन करेंगे, जिसमें कि आप अपने सबसे पहले पीठ की बल लेट जाइए. हाँ, कुछ लोग, मैं 2 ऑप्शन दूंगा. कुछ लोग बेसिक वर्जन ट्राई करेंगे और कुछ लोग ऊपर की तरफ पैरों को लेके जा सकते हैं. एक बार ध्यान से देख लीजिए. दोनों हाथों को बगल में. एक बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए. दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री और केवल इस तरीके से रखेंगे. थोड़ा नी बेंड हो जाए कोई बात नहीं. अगर पूरा पैर सीधा हो जाए दैट इज वेरी गुड. नाउ मैक्सिमम ऑफ द पीपल ये ट्राई करेंगे. कुछ लोग जो अभ्यास पहले से करते हैं वो विपरीत करनी कर सकते हैं, जैसे कि इसी को और ऊपर की तरफ ले जाकर पैर को, घुटने को मोड़ेंगे, हाथ को कमर के पास लगाएंगे और दोनों पैरों को धीरे से ऊपर, यानी आपके कमर और नेक के पास 45 डिग्री के एंगल और आपके कमर और टोज तक 90 डिग्री, और कुछ पल इसमें रहेंगे. बंद आंखों से ऑब्जर्व करेंगे द ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स द अपर बॉडी, टुवर्ड्स ब्रेन, rejuvenating it, relaxing it. You can stay here initially 10 seconds, 20, 30, what you feel good at. But always be mindful, always listen to your body, do things under your control, and then slowly bend your knees and come back slowly and relax. Now शवासन में, just to relax, शवासन में आ जाइए. दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दूरी, पंजे बिल्कुल ढीले, हथेलियां बगल में आकाश की तरफ, उंगलियां स्वतः मुड़ी हुई, नासाग्र नाभि एक रेखा में, ठुड्डी सीने की तरफ,
आंखें सहजता पूर्वक बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स्ड। ध्यान को श्वासों पर टिकाइए। केवल आती जाती श्वासों को देखिए, किसी भी तरीके के प्रश्न मत कीजिए। जो भी अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उनके प्रति सजग रहिए। साथ ही साथ हर बार श्वास लेने और छोड़ने पर आपकी नाभि ऊपर आती है और नाभि नीचे आती है, उनके प्रति भी दृष्टा भाव रखिए। आप पाएंगे कि हर बार श्वास बाहर आती है, पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब धीरे से अपने ध्यान को वातावरण में लाइए। आसपास की हवाओं उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे बहिर्मुखी बनते जाइए। आसपास की जो भी चीजें हैं उनका मानसिक अनुभव। अपने स्थूल शरीर का ख्याल कीजिए। अपने शरीर और अपने कपड़ों के बीच स्पर्श बिंदु का ख्याल कीजिए। अपने शरीर और योगा मैट के बीच स्पर्श बिंदु का ख्याल, जैसे पीछे का सर, ऊपरी पीठ, निचली पीठ, कमर, पुट्ठा, जांग, पिंडली, एड़ी, पूरा पीछे का भाग। एक बार पूर्ण तरीके से बहिर्मुखी महसूस करेंगे तो धीरे धीरे मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। पंजे दाएं बाएं, टोज को हिलाइए, डुलाइए। गर्दन दाएं बाएं, तब तक आंखें बंद ही है। शरीर को तानिए, उंगलियों को फंसाकर श्वास लेते हुए, जैसे ताड़ासन में करते हो। 2-3 करवट लीजिए। करवट के लिए घुटने को मोड़ सकते हैं। किसी एक करवट से उठकर बैठ जाइए। आंखें कोशिश कीजिए बंद ही रहे और ध्यान की अवस्था में पुनः बैठ जाइए। जो भी विश्रांति आपके शरीर और मन में आई है, जितने भी अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति एक सजगता रखिए। मानसिक शांति, completely in present moment। अपने श्वास को थोड़ी गहरी एवं धीमी बनाइए। धीमी गहरी लंबी श्वास लीजिए और धीमी गति से छोड़िए। हथेलियों को आपस में एक बार अच्छे से घर्षण कीजिए। आंखों पर सेक लगाइए। धीरे से आंखों को
खोलिए। ये रिलैक्सेशन शॉर्ट योगा नैप है। शवासन में आप रिलैक्स कर रहे थे। इसी के विस्तार रूप को हम लोग योग निद्रा भी बोलते हैं, जो कि कम से कम 10 मिनट से लेकर 45 मिनट या 1 घंटे तक भी आप अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जो कि आपके फिजिकल और मेंटल बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करता है, आपके बॉडी में हार्मनी क्रिएट करता है, नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी रिलैक्स करता है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करते हैं वो अपने जीवन में ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और 1 घंटे की योग निद्रा लगभग 2 से 3 घंटे के सोने, कंप्लीट गहरी नींद के बराबर होती है। अगर हम योग निद्रा की बात करें तो उसमें 1-2 बातें और बताऊं। योग निद्रा में हम कंप्लीटली सोते नहीं हैं, उसमें हम आंतरिक रूप से जगे रहते हैं, यानी हम कॉन्शियस रहते हैं। केवल हमारा फिजिकल बॉडी कंप्लीटली इंटरनल ऑर्गन्स तक कंप्लीटली रिलैक्स रहता है, और हम एक तंद्रा की अवस्था में होते हैं, ना ही हम जगे होते हैं और हम ना ही सोए होते हैं। तो ये जो अभ्यास है वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा इजाद किया गया है, उनके द्वारा ये अभ्यास बनाया गया है, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर भी हैं। उनकी समाधि स्थल विद्यापीठ आश्रम में है, जैसा आप सभी जानते भी होंगे। तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सूर्य नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं जो सूर्य नमस्कार है वो योग का राजा कहलाता है, योग अभ्यास का राजा कहलाता है। एक 8 साल की उम्र से लेकर काफी ऊपर की उम्र तक इंसान को इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिनको स्पेशल कोई समस्या हो, हाई बीपी या साइटिका या सीवियर बैक पेन या स्पॉन्डिलोसिस या एक्यूट आर्थराइटिस, वो अपने डॉक्टर के देखरेख में ही किसी भी अभ्यास को करें। या एक सलाह ये भी है कि कभी भी कोई भी अभ्यास करें, अगर आपको एट ईज ना लगे तो तुरंत उसको ना करें, उसको रोक दे प्रैक्टिस को, और किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। तो अभी हम लोग सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। इसमें क्या करना है, अपनी योगा मैट के सामने पॉस्चर पर खड़े हो जाइए। अभ्यास को अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी होगी। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए प्रणाम में आएंगे, हाथों को प्रणाम मुद्रा में। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा बैक बेंड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, आराम से। श्वास छोड़ते हुए लो बैक से आगे की तरफ बेंड करेंगे। दोनों हाथों को अपने पंजे के बगल में लाएंगे या एड़ी को पकड़ सकते हैं। नाक को घुटने में सटाने का प्रयास। दोनों हाथ को बगल में प्लेस करेंगे। राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, नी को प्लेस करेंगे जमीन पे। श्वास लेते हुए सर ऊपर, अश्व संचालन। आप पूरा हाथ भी प्लेस कर सकते हैं या केवल टिप। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, पर्वत। श्वास को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार। अपने घुटने और चेस्ट चिन को ग्राउंड से टच करेंगे, हिप ऊपर होगा। वापिस श्वास लेते हुए भुजंग में आएंगे। भुजंग में आने के बाद पर्वत। लेफ्ट लेग को डायरेक्ट आगे लेकर आएंगे, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को वापस आगे, नोज को नी से टच करने का प्रयास। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ये हुआ सूर्य नमस्कार का हाफ चक्र। हम लोग इसको फुल करेंगे। अभी हमने राइट लेग को पीछे ले गया था, अब हम लोग लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। पुनः शुरू कीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। श्वास लेते हुए हस्त उत्थान। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे, ऊपर अश्व संचालन, पर्वत। श्वास लेते अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते भुजंग, वापिस श्वास छोड़ते पर्वत। हम लेफ्ट लेग पीछे लेकर गए थे, तो इस बार राइट लेग आगे लेकर आएंगे, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हस्त पादासन।
हस्तुत्थान एंड देन प्रणाम। ये हुआ हमारा एक संपूर्ण चक्र। अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करना है। ये आपके हम और थम यानी कि आपके चंद्र और सूर्य नाड़ी के बैलेंसिंग के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। ये अपने आप में एक संपूर्ण अभ्यास है। इसके लिए इसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। कुछ बेसिक अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास आप करते हैं, उसके बाद ही इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट के देख रेख में करें, एक बार सीख जाएं तो अच्छे से आप अभ्यास करेंगे। इसका भी हम लोग कम से कम 2 राउंड और करेंगे। तैयार हो जाइए। श्वास छोड़ते प्रणाम। इनहेल आप। कुछ लोग और भी बेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी बेंड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़िए। एट ईज में करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेनी है। हेड अप, दोनों हाथ बगल में, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वत, स्पाइन एरेक्ट, हेड इनसाइड, गो टू अष्टांग नमस्कार। इनहेल अप, कोबरा भुजंग, अगेन पर्वत। राइट लेग पीछे लेके गए थे तो लेफ्ट लेग आगे लाएंगे, अप, राइट लेग अगेन, दोनों हाथों की उंगलियां और पैरों के टोज एक लाइन में है, गो डाउन। इनहेल अप एंड देन एक्सहेल। ये हाफ चक्र हुआ, इसको फिर वापस कंप्लीट करेंगे। एक्सहेल, श्वास छोड़िए प्रणाम। इनहेल अप, एक्सहेल, लेफ्ट लेग, अश्व संचालन, पर्वत, श्वास को होल्ड करेंगे, भुजंग, श्वास लेंगे, भुजंग, वापिस श्वास छोड़ेंगे, पर्वत। इस बार लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे तो राइट लेग आगे डायरेक्टली, हेड अप एंड इनहेल अप एंड प्रणाम। दिस इज अगेन 1 कंप्लीट राउंड। आप शुरुआत में 3 से 5 राउंड कर सकते हैं, फिर आप इसको बढ़ाकर 10 राउंड्स, 20 राउंड्स तक इजीली लेकर जा सकते हैं। आपके संपूर्ण विकास के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। छोटे बच्चे जो 8 साल से ऊपर उम्र के हैं वो आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। उनके लिए जो 3 चीज महत्वपूर्ण है वो भी मैं बता दूं। उनके लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम। कोई भी बच्चा जो 8 साल के ऊपर की उम्र का है वो इसको आराम से कर सकता है। तो 1 राउंड हम लोग और करेंगे इस अभ्यास का। तैयार हो जाइए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, राइट लेग बैक, लेफ्ट, अष्टांग, 8 अंग इसमें बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, कोबरा, अगेन पर्वत, राइट लेग पीछे लेकर गए थे तो राइट लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन, हस्तुत्थान एंड प्रणाम। अगेन हाफ ऑफ द होल सर्कल। इसको कंप्लीट करेंगे लेफ्ट साइड से। एक्सहेल प्रणामा, इनहेल अप, एक्सहेल बेंड। जिनको बेंडिंग में यहीं तक पॉसिबल है आराम से यहीं तक करेंगे, कोई परेशानी नहीं, जितना पॉसिबल हो। प्लीज कंटिन्यू। पर्वत, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, अगेन पर्वत, फ्रंट, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। सभी लोग वापस पीठ की बल शवासन में लेट जाएंगे। अभ्यास की इंटेंसिटी आपके हाथों में है, कितना प्रिसीजन आपको करना है वो धीरे धीरे अभ्यास तय करता है। एक दिन में प्रिसीजन नहीं आती है, अभ्यास करते करते मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब आते हैं।
पीठ के बल वापस लेट जाइए, शव आसन में, शव की तरह। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कहीं भी तनाव मत रखिए। पंजे को बिल्कुल ढीला, शांत। अपने श्वास की गति, धड़कन की गति, मस्तिष्क पे असर, आंतरिक अंगों में और जो भी असर हुआ है या हो रहा है उसके प्रति सजगता। पूरे शरीर को ढीला होने दीजिए, शांत होने दीजिए। कहीं भी तनाव मत रखिए। हर श्वास निष्कासन के साथ शारीरिक विश्रांति, मानसिक विश्रांति, ना पुनः श्वास लेते हुए शरीर को तानिए, धीरे धीरे बहिर्मुखी बनाइए, हाथ पैर को हिलाइए डुलाइए। श्वास लेते हुए शरीर को तानिए, दाएं बाएं करवट लीजिए, उसके लिए घुटने को मोड़ सकते हैं। और किसी एक करवट से उठकर बैठ जाइए, प्रिफर कीजिए लेफ्ट। वापस किसी अभ्यास, किसी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, आंखों को बंद रखिए। शरीर में उत्पन्न हुई जो भी संवेदनाएं हैं उनके प्रति सजग रहिए। अब हम लोग एक और अभ्यास करेंगे जो कि अजपा जप का है। सभी लोग आंखों को बंद रखिए, इच्छा हो तो खोल लीजिए और पुनः अभ्यास के दौरान बंद कर लेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके नेवल से लेकर थ्रोट तक एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, ट्यूब है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास है, उसके जगह पर है। श्वास लेते हुए आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि नाभि से एक रंग, वो कोई भी कलर का हो सकता है, या एक ऊर्जा, एक शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपके थ्रोट तक आती है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वापस वो ऊर्जा उसी ट्यूब में नीचे तक, नाभि तक जाती है। साथ में आपको अभ्यास के साथ मन ही मन मंत्र जोड़ लेना है, वो है श्वास लेते वक्त सो, छोड़ते वक्त हम। ऐसा आपको मन में बोलना है। तो शुरू कीजिए। इसका अभ्यास हम लोग 2 से 3 मिनट का करेंगे। ध्यान की अवस्था में रहिए, सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। जो भी एडजस्टमेंट करना हो अपने साथ कर लीजिए। नाउ बी रेडी। आंखें बंद। इमेजिन ट्यूब, ट्रांसपेरेंट ट्यूब between your navel and throat. Inhale, so exhale, hum। मन में ऐसा कीजिए। लगातार उस ऊर्जा को महसूस कीजिए।
श्वास लेने पर नाभि से लेकर थ्रोट तक ट्रैवल करती है, श्वास छोड़ने पर थ्रोट से लेकर कंठ से लेकर वापस नाभि तक आती है। लगातार सजगता बनी रहे। लगातार उस ट्यूब पर आपका ध्यान श्वास ले रहे हैं नाभि से लेकर थ्रोट तक। विजुलाइज कीजिए उस एनर्जी को ऊपर की तरफ सो मंत्र के साथ, और श्वास छोड़ते वक्त थ्रोट से कंठ से नाभि की ओर श्वास छोड़ते वक्त हम मंत्र के साथ मानसिक रूप से उस मंत्र का जप कीजिए। श्वास लेते वक्त सो, श्वास छोड़ते वक्त हम, सो, हम। ऐसा आप मन में कर रहे हैं, मैंने आपको साउंड प्रोड्यूस करके दिखाया। आप ऐसा पाएंगे कि आपकी श्वास की जो ध्वनि है, जो सूक्ष्म ध्वनि है, वो यही है। जो नॉस्ट्रिल्स में सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है हवा और नॉस्ट्रिल्स के इनर लाइनिंग से, फ्रिक्शन से। अब हम लोग अभ्यास का त्याग करेंगे। सभी लोग अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पे ले आइए। और अब बंद आंखों से जितनी भी ध्वनियां आप सुन सकते हैं अपने आसपास, उसको एक एक करके सुनिए। चाहे वो ध्वनि दूर की हो, पास की हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, किसी भी ध्वनि से जुड़ाव नहीं। एक दृष्टा की तरह सुनेंगे, फिर दूसरी को, तीसरी ध्वनि, और आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे वो घड़ी के टिक टिक की हो, फैन के चलने की हो। और अब आप स्वयं के धड़कन की ध्वनि को सुनिए। स्वयं के श्वासों की ध्वनि को सुनिए। श्वास लेते वक्त सो, छोड़ते वक्त हम, सो, हम। सभी लोग ध्यान को ध्वनियों से हटाकर अपने आईब्रो सेंटर पर लाइए। वहां एक चमकती दिव्य ज्योति का मानस दर्शन कीजिए। ध्यान को ज्योति पर टिका के रखिए। 3 बार ओमकार, तत्पश्चात ओम शांति का अभ्यास करेंगे। ओमकार हेतु सभी लोग एक साथ गहरी एवं लंबी श्वास लीजिए।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कुछ क्षणों तक शांत रहिए। मंत्रों के सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर, अपने आसपास महसूस कीजिए। पूर्ण सजगता से हथेलियों को घर्षण कीजिए आपस में। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आंखों पर रखिए आहिस्ते से। ऐसा 3 बार कीजिए। एक बार पुनः। आंखों को कुछ क्षणों के लिए ढके रहिए। ऊर्जा को आंखों में जाने दीजिए, प्राणिक ऊर्जा, हीट। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, प्रणाम मुद्रा में आइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज का ये छोटा अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन आंसर या फिर जिनका जो प्रश्न हो वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद उदित जी, धन्यवाद। आज के इस सेशन के लिए। मैं अब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आग्रह करूंगी कि अगर उनके कोई सवाल हो तो वो पूछें। All the participants are requested to raise their hands so that I can unmute you and you can ask a question to our yoga trainer today, Sri Udit Kumar, to Sri Udit Kumar ji. Is there any question from anyone? मेरा एक सवाल है उदित जी कि जब मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो जब मैं पैर को आगे लाना चाहती हूँ, जो आप पर्वतासन के बाद जो आप कह रहे हैं, तो मैं अपने पैर को बिल्कुल आगे दोनों हाथ के बीच नहीं ला पाती। मेरा पैर पीछे रह जाता है। मेरा पीछे से जब पर्वतासन के बाद आगे एक पैर को लाना चाहती हूँ तो वो सही स्थान पे नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सूक्ष्म सवाल है। इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे कि मैंने आपको सूर्य नमस्कार करते वक्त भी बताया कि ये अभ्यास करने के पहले कुछ पूर्व अभ्यास करने होते हैं, जिसमें कि कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं और कुछ मेरुदंड के अभ्यास हैं, जिसमें कि बेसिकली आपके जितने जॉइंट्स हैं उस पे काम होता है। आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तभी बिल्डिंग या भवन अच्छा बन सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी कम है या उसकी रेंज ऑफ मोशन या मोबिलिटी कम है, वो पर्टिकुलर एरिया या रेंज में ही मूव कर रहा है, उसकी जो उससे कनेक्टेड जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वो थोड़े रिजिड हैं। तो सबसे पहले हमें उन जॉइंट्स पे सूक्ष्म अभ्यास से और भी जो अलग-अलग लेवल पे अभ्यास है, उनको करके पहले उनको सुदृढ़ बना लेना है, फ्लेक्सिबल बना लेना है। तब इस अभ्यास को करने से फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से आ जाएगी और जितने भी रिक्वायर्ड मूवमेंट्स हैं, वो हो जाएंगे। वो पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है, उनके दिनचर्या पे, उनके डाइट पे, उनकी सोच पे भी निर्भर करता है। और तब आप किसी भी उम्र में किसी भी अभ्यास को कर सकते हैं, अगर आप संकल्पित हो, अगर आप उसके लिए सही ट्रेनिंग और प्रोग्रेसिव योगा करें। प्रोग्रेसिव कहने का सेंस है, पहले जो जरूरत है उसको, फिर दूसरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। हरिओम। जी, एक और सवाल है। ऐसा है कि जैसे आप जिस आसन में बैठे हैं, सुखासन में जैसे आप भी हम बैठ सकते हैं, तो मैं बहुत लंबे समय तक बैठती हूँ। ऐसे है, मेरा अभ्यास तो है, बट मैं देखती हूँ कि मेरा जो दाएं तरफ का जो शरीर है उसमें धीरे धीरे दर्द होने लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा वो सूर्य और चंद्रमा का जो बैलेंस है
वो मेरा एक तरफ कुछ कमजोर है और एक तरफ सुदृढ़ है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं इस हिसाब से जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जैसे बैठते हैं, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे अर्ध पद्मासन हो, वो आपको देखना होगा कि आप कैसे बैठते हैं। और दूसरी बात कि आप ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप बीच में आसन को चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ 10 मिनट्स के बाद अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी-सी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप धीरे से अभ्यास को चेंज या दूसरे अभ्यास में जा सकते हैं बैठने के किसी। इसीलिए अभ्यास के दौरान भी मैं बीच-बीच में और भी कुछ सूक्ष्म अभ्यास करवाते रहता हूँ, एक वो चीज़ है। दूसरी, जहाँ तक चंद्र और सूर्य नाड़ी की बात है, तो उसमें तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं या अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक रूप से जिनकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा चंचल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मानसिक रूप से शांत होते हैं, तो उनकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। कुछ लोगों की सूर्य नाड़ी ज़्यादा, कुछ बच्चे या कुछ उम्र के लोग भी ज़्यादा चंचल होते हैं, तो उनकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, वो फिज़िकल चीज़ें ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग मेंटल। इसलिए सूर्य नमस्कार या योग का एक तरह से कहिए तो संपूर्ण आधार ही है संतुलन लाना। आपके चंद्र और सूर्य में कह सकते हैं, रात-दिन में कह सकते हैं। अपने जीवन के हर एक आयाम में बैलेंस लाना। तो बैलेंस लाना मेन अप्रोच है योग का। तो ये तो आप अगर योगा स्पर्श सेंटर आप आएँगे तो मैं आपसे सामने से भी देख के बहुत सारी चीज़ें अनुभव करके बता सकता हूँ आपको और क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिलहाल तो ये कह सकता हूँ कि आप अपने पोस्चर को बदलते रहिए और पूरे पूरे दिनचर्या में अलग-अलग समय में अलग-अलग पोस्चर्स में बैठने का प्रयास कीजिए। जैसे आप सीधे बैठिए, कभी पद्मासन में बैठिए, अगर आप ऑफ़िस में भी हैं, तो कभी वॉक कीजिए, थोड़ा समय हर 1-2 घंटे पे 2 मिनट का समय निकाल कर थोड़ा वॉक कर लीजिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास कर लीजिए या हम लोग चेयर योगा पे भी फ़ोकस करते हैं, हमारे पास चेयर योगा भी है, उसको भी आप कर सकते हैं। कभी अलग से सेशन होगा तो सिर्फ़ चेयर योगा करवाया जा सकता है। इस तरीके से अपने बॉडी को और फिज़िकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को एंगेज रखना है पॉज़िटिव तरीके से। अक्सर हम लोग अपने दूसरे कामों पे ध्यान देते हैं और जो बेस है हमारा, जो मीडियम है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, उस पे हमारा ध्यान कम हो जाता है और ख़ासकर हमारे डाइट का हमारे जीवन पे काफ़ी असर होता है। तो मैं आग्रह करूँगा सभी लोग से कि सात्विक भोजन पे ज़्यादा रहें या आप जो भी खाएँ उसमें थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आप क्या और कब और कैसे खाते हैं, तो आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। एक हरिओम। प्रश्न है जी, एक प्रश्न है सोनू कुमार जी की ओर से। उन्होंने कहा जी। है कि विपश्यना और मेडिटेशन के बीच मूलभूत अंतर क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, विपश्यना और मेडिटेशन के बीच मूलभूत अंतर ये है कि विपश्यना अपने आप में एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा चलाई गई थी। वो उनका अपना एक ट्रेडिशन है। जैसे योग जो है, वो अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जैसे कि कोई आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करता है, जो श्री श्री रविशंकर जी कराते हैं। कुछ लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा को फॉलो करता है, जो कि स्वामी सत्यानंद जी ने चालू किया था 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से मुंगेर में जो आश्रम है। उनके गुरुजी, बड़े गुरुजी स्वामी शिवानंद सरस्वती जो कि ऋषिकेश के, वो तो साउथ से बिलॉन्ग करते थे पर उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि योगा तो योग है, लेकिन अलग-अलग लोग, अलग-अलग गुरु इसको परंपरा से अलग-अलग तरीके से इसको फ्लरिश किए, अपने-अपने फॉलोअर्स बने। जैसे कि आप स्वामी एस व्यासा जाएँगे तो वहाँ की अलग-अलग थोड़ी पद्धति हो जाती है। योग तो योग ही अपने आप में संतुलन है, जोर है, जुड़ाव है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, अपने आप में बैलेंस है, हर चीज़ में एक बैलेंसिंग अप्रोच है। हमारे यहाँ कहते हैं कि एडजस्ट एंड अडैप्ट इज़ द हाईएस्ट योगा एंड द हाईएस्ट साधना। हमारे मुंगेर में एक ऐसी कीर्तन भी है ऐसा। उसमें तो कहने का सेंस है आप किसी सिचुएशन में कितना एडजस्ट करते हो, कितना अडैप्ट करते हो, यही हाईएस्ट साधना है और यही हाईएस्ट योगा है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़रूरत है। तो आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन अपने आप में एक तरह से, मेडिटेशन कहने का तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सभी चीज़ों को भूलकर केवल एक शून्य की स्थिति में चले जाते हैं, जिसमें कि आपको किसी चीज़ का ख़्याल नहीं होता, ना दुःख का, ना सुख का। वो एक अवस्था होती है, जो कि धारणा के बाद आती है। शुरू में जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, वो धारणा होती है कि हम केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस करते हैं।
वो धारणा या कंसंट्रेशन कहलाती है। लेकिन जब वही कंसंट्रेशन लंबे समय के लिए रुक जाती है, ठहर जाती है, तो वो ध्यान बन जाती है। और जब ध्यान बहुत ही बड़े समय के लिए लग जाती है तो वो समाधि हो जाती है। वो तो बहुत बड़ी ऊंची चीज है। तो मैं सिर्फ इतना आपको, सोनू जी को कह सकता हूँ कि विपश्यना भी अपने आप में एक मेडिटेशन है, लेकिन उनको गौतम बुद्ध जी के द्वारा चलाया गया है। उनकी अपनी एक परंपरा है, उनकी अपनी एक सिस्टम है जी। जैसे कि अपना होता है ना, एक सीबीएसई बोर्ड है, एक आईसीएसई बोर्ड है, पढ़ाना तो दोनों को है, लेकिन अपनी उसकी एक सिलेबस है, अपना उसका एक पूरा फैकल्टी है, मैनिफेस्टो है, उसी तरीके से। हरिओम। एक और सवाल है अर्पणा कुमारी जी की तरफ से। जी उनका कहना है कि किस प्रकार का योगासन किया जाए कि जिससे थायराइड की प्रॉब्लम्स में आराम हो। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, एक चीज तो सबसे जो अच्छी सलाह मैं देना चाहूंगा वो ये कि सबसे पहले अपने डाइट का ख्याल रखें। अगर आप दवा का सेवन करते हैं तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें, अपने डॉक्टर के देख रेख में ही उसका सेवन करते रहें, क्योंकि वही उसके एमजी को या उसके क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। अपने आप से थायराइड या किसी भी बीमारी में अपने आप से कोई भी डिसीजन ना लें, एक्सपर्ट्स का सहारा लें। जहाँ तक योग की बात है, इसे सभी लोग प्रिवेंटिव नेचर की तरह ज्यादा देखें। क्यूरेटिव भी है ये थेराप्यूटिक भी है, पर अगर आप प्रिवेंटिव रहेंगे तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब आते हैं थायराइड पे प्रॉपर्ली। थायराइड की बात करें तो थायराइड की जो समस्या है वो बेसिकली दो, या तो हाइपर या तो हाइपोथायराइड की समस्या होती है। थायराइड एक तरह का ग्लैंड होता है हमारे गले के अंदर, वहां पे उसके साथ उससे हाइपोथायराइड भी ग्लैंड चिपके होते हैं, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है ऑलमोस्ट। होता है क्या है कि उससे जो सिक्रीशन होते हैं अलग अलग हार्मोन्स, जैसे टीएसएच है और भी हार्मोन्स है, थायरोक्सिन है, उसमें या तो हाइपर या तो वो ज्यादा बनने लगते हैं या तो कम बनने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य उसमें भी बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए। तो अगर आप जो भी अभ्यास जिसमें नेक का इन्वॉल्वमेंट हो, नेक की बेंडिंग हो, नेक की साइड बेंडिंग हो, या नेक पे प्रेशर आता हो, ऐसे तो सभी अभ्यास का असर आपके संपूर्ण आयाम पे होता है। ज्यादा और थोड़ा अलग अलग रेशियोज में होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जिस भी अभ्यास में, और बहुत सारे अभ्यास, जैसे हमने एक विपरीत करने अभ्यास किया था जिसमें पैरों को ऊपर किया था और कमर से लेकर पीठ तक 45 डिग्री की एंगल थी और कमर से लेकर अब ऊपर 90 डिग्री, तो उस अभ्यास में भी आप देखेंगे कि आपके नेक के ऊपर एक काफी सकारात्मक प्रेशर आता है, यानी कि आपके ग्लैंड्स में एक मसाज होता है फिजिकल फॉर्म में, यानी कि प्राणिक ऊर्जा की वहां फ्लो होती है, आपकी वाइटैलिटी वहां इंक्रीज होती है, तो वो अपने आप सेटल डाउन होता है। हाइपर है तो बैलेंस डाउन हो जाएगा, हाइपो है तो बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके का अभ्यास जिसमें इवन जो नेक का बेसिक मूवमेंट है, सपोज ये जो केवल फॉरवर्ड और बेंडिंग है अपवर्ड, इसको भी आप ध्यान के साथ करेंगे तो ये भी आपको रिजल्ट देगा थायराइड में। एक विशेष बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा अर्चना जी को, वो ये है कि मेरा ये मानना है कि क्या अभ्यास हम करते हैं वो सेकेंडरी है, पर हम कैसे अभ्यास को करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं, हमारा भाव क्या होता है। हम करते तो बहुत सारी चीजें हैं, पर अक्सर हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। हमें प्रेजेंट में रहना है। अगर हम प्रेजेंट में रह के किसी भी कार्य को करेंगे तो वो योग ही है। कुछ कर्म योग है, कुछ लय योग है, कुछ नाद योग है, कुछ स्वर योग है, इसी तरीके से। तो जिस भी अभ्यास में नेक पे प्रेशर आता हो सकारात्मक रूप से, वो अभ्यास आप कर सकते हैं। बशर्ते आप एक बार थोड़ा टेक्निकली एक्सपर्ट से सहारा जरूर लें, क्योंकि आपके नेक की क्या पोजिशनिंग है बॉडी की, और भी क्या उसमें क्या डिफॉर्म्स है क्या नहीं है, वो जानना जरूरी है सभी पैरामीटर्स। हरिओम। जी उदित जी, जी एक और सवाल है। आप अपना नाम बताएंगे? ANC 059। मैम इट्स अन्नपूर्णा। ओके, अन्नपूर्णा। ओके, अच्छा अन्नपूर्णा, आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू उदित जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एंड स्ट्रेस कम करने के लिए आप बोल सकते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए कौन सा कुछ किया जाए योगा एंड ऑल। ओके, एक बार वापस आप बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा सवाल को। हरिओम। मैं बोल रही थी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए। वेरी नाइस। ओके, तो आपने जिस पूछ लिया है दैट इज अ वेरी कॉमन एंड बहुत ही प्रचलित सवाल है। ये बहुत अच्छा आपने पूछा, सभी को लाभ होगा इससे। देखिए, सबसे पहले तो है खुश रहना, इज द हाईएस्ट योग। अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी अभी मैंने बताया, इससे हाईएस्ट योग। सपोज एक व्यक्ति कोई आसन नहीं करता,
लेकिन वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, वो अपने लाइफ के हर काम को अपने 100% देता है, तो वो अपने आप में योगी है। कहने का सेंस क्या है, आपको खुश रहना है। अब खुश रहने का सही तरीका क्या हो, ये आपको ढूंढना है। कहने का सेंस है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी चीज को किसी चीज में खुशी मिलती है, तो खुशी आपको कैसे खुश रहना है ये सोचना है। छोटा तरीका बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल, आपको स्माइल करना है। अक्सर हम लोग ना अक्सर हम लोग स्माइल करने में भी संकोच करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो एक ना बहुत ही मैकेनिकल तरीके से मिलते हैं, केवल प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनलिज्म इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि स्माइल भी करते हैं तो फेक, जानते हैं कि काम है इसलिए स्माइल करते हैं, नहीं, एक दिल से स्माइल जो है वो आपकी आत्मा का दर्पण है। अगर आप स्माइल करना सीख जाओ, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते। तो आप स्माइल करो, किसी से भी बात करो, स्माइल करो, शेयर करो, अपनी बातों को शेयर करो, जो भी चीज आप शेयर कर सकते हो, जो नीडफुल है उनके साथ शेयर करो। अच्छा, लाइफ में एक फ्रेंड रखो, एक गुरु रखो, एक टीचर रखो, एक जो आपको मोटिवेट कर सके पॉजिटिव रूप में, सही तरीके से उससे एक जुड़ाव रखो, एक अच्छी कम्युनिटी में रहो, एक अच्छे नेटवर्क में रहो। ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस को भी कम करेगी, और साथ साथ मिलकर योगा अभ्यास करो, योगा के अलग अलग आयाम को करो। दैट इज द बेसिक थिंग। हरिओम। थैंक यू सर। और कोई सवाल है? और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इस सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद उदित कुमार जी। आज जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपके सबसे ज्यादा आपके व्यक्तित्व में बहुत ठहराव है जो मैंने महसूस किया है। तो आप हमारे साथ थे और आपने हमें जो योगा के प्रैक्टिसेस कुछ बताई और जीवन को एक सही तरीके से, एक पॉजिटिव ढंग से देखने के लिए प्रेरित किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और अब मैं यही आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम आपसे सलाह लेते रहेंगे, और हमारे पार्टिसिपेंट्स आपसे जरूरत जिनको होगी और जिनकी चाहत होगी, जो विश करेंगे, वो जरूर आपके संपर्क में रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद दे रही हूँ, और योगा स्पर्श फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और ये धन्यवाद हमारी तरफ से है, मेरी तरफ से है, हमारी कॉलेज की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से है, साथ ही साथ सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने ये अटल एफडीपी को कोऑर्डिनेट किया, और मैं आप यहाँ आए और हम लोगों को आपने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि योग करें, निरोग रहें, और योगा स्पर्श सेंटर जो हमारे सीडीए बिल्डिंग भट्टाचार्य मोड़ पे है, इस पे भी आए और जरूर योग करें, जहां भी रहे खुश रहें। हरिओम।